Are you ready? My dear students, today we discuss the history, modern history. In the modern history, we discuss about the Britishers. In the first chapter, we discuss what is history, what is the importance of history, and what is the features of history and different sources of modern history. Because in 8th class, we are discussing the modern history. In this chapter, we discuss about the Britishers, the intention of Britishers. What is the intention of Britishers to come India? Only for trade or to make the territory or expand their territory in India? क्या intentions थे Britishers को India आकर trade करने के लिए? So let's begin our class now. History chapter 2, class 8th. From trade to territory. We will learn or discuss this chapter with the help of this beautiful made presentation. Start with the introduction. We all know history is not a story of one night. It's not a dream, you just get up and think, oh, it's happened last night, oh, this has happened tonight. So it's not a history. It's a link between the stories. So let's begin how the Britishers easily came India, how they know about India, how they easily conquered India. So let's begin with the introduction. From the introduction, we discussed in 1707 when the Mughal Empire declined. Now, what is the reason behind Mughal Empire declining? Mughal Empire decline क्यों होने लगा? Mughal Empire decline इसलिए होने लगा because of the death of औरंगजेब. औरंगजेब की डेथ के बाद because औरंगजेब या कोई भी empire decline क्यों होता है? Just because एक powerful king उस जगह पर नहीं होता है, उस एरिया को या उसकी टेरिटरी को वो कॉन्क्वायर करके बांध कर नहीं रख पाता, तो कोई भी एम्पायर डिक्लाइन होने का कारण यही होता है कि कोई भी पावरफुल किंग वहाँ ना रहे. तो मुगल एम्पायर का लास्ट रूलर तो नहीं बट लास्ट पावरफुल रूलर थे औरंगजेब, जो 1707 में जिनकी डेथ हो गई. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर डिक्लाइनिंग एंड इंडिया में कोई भी नेवल सुपर पावर नहीं थी. Then second battle, Marathas also rise up at that time, but in the third battle of Panipat in 1761, Marathas also crushed by Ahmad Shah Abdali. So in India there was a time where no unity in India, no powerful kingdom in India. So ये वो समय था. Let's see the next. Okay, let's discuss how Europeans know about India, how Europeans country know about India, because if we see that European country was far away, at the time no plane system was there, no airways was there, so how they know about the India? Randomly Vasco da Gama in 1498 discovered the sea route of India. He came from the Cape of Good Hope and just entered Calcutta first in India and started Portuguese. Vasco da Gama was a Portuguese traveler. He started the base camp in Goa. उन्होंने अपना पहला बेस कैंप गोवा में स्टार्ट किया था. कलकत्ता में वो उतरे थे और जब वो इंडिया आए, when they entered India, they just saw the beauty of India, geographical location of India, that we are having sea, oceans, we are having that different rivers, agriculture, proper agriculture system, we are having minerals, lot of golds, we are having different type of agriculture we are doing, and we are a phosphorus country. ये देखा यूरोपियन ट्रैवलर जो एक पोर्तुगीज ट्रैवलर था वास्को डी गामा. वास्को डी गामा जब वापस यूरोप गए तो उन्होंने सोचा कि इंडिया में हमें ट्रेड स्टार्ट करनी चाहिए, इंडिया के साथ ट्रेड करने से हमको बहुत बेनिफिट्स होंगे. सो स्लोली दूसरे कंट्रीज ने भी उनका पीछा किया और पता किया कि कहाँ से ये ट्रेड शुरू हुई है. तो सबको यूरोपियन कंट्रीज को स्लोली इंडिया के बारे में पता चला. उस टाइम पे यूरोप में भी एक बहुत ही सुपर पावर थी इंग्लैंड या ब्रिटिशर्स उस टाइम पे यूरोप में भी सुपर पावर थी. उन्होंने भी इंडिया में बिजनेस या ट्रेड स्टार्ट करने के लिए कोशिश की. सो इन ऑल European countries now know about, mostly European countries know about the India after Portuguese discovered the sea route of India. The Portugal, Holland, English, France, Denmark, Spanish, Dutch, all were anxious, very excited to do trade with India. So now English were the superior at the time. For in Europe countries also English तब भी superior थे. तो English को ये था कि they only want to trade with India. वो सिर्फ अकेले इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे. तो जो भी उनके बीच में आ रहा था वो उनका एनिमी था और वो उसको अपने रास्ते से हटा रहे थे. तो in 1598 English defeated Spanish. सबसे पहले इंग्लिश ने स्पेनिश को अपने रास्ते से हटाया. Let's begin with the next slide. So from trade to territory, वो सिर्फ इंडिया में ट्रेड करने आए थे. फिर ऐसा क्या हुआ? They started making territory or annexing different territories of India. So Europeans in India know about the Indian prosperity. So in 1600, Queen Elizabeth II, Queen Elizabeth II, as you can see the picture of Queen Elizabeth looking like a doll, she granted. उन्होंने ग्रांट किया सिर्फ इंग्लैंड की एक लौती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि सिर्फ आप ही जाएंगे इंडिया में सोल ट्रेडिंग करने, हमारी कंट्री से कोई भी आपको कंपटीशन नहीं होगा. बट रॉयल चार्टर्स जो थे वो सारे कंट्रीज को नहीं रोक सकते थे. अपनी कंट्री से आप सिर्फ एक कंपनी को बेच सकते हो लेकिन सारे कंट्रीज की कंपनीज को वहाँ पे ट्रेड करने के लिए नहीं रोक सकते. सो क्वीन एलिजाबेथ ने परमिशन दी कि आप जाइए और सोल ट्रेड कीजिए इन 1600. देन what is the aim of the trading company? ट्रेडिंग कंपनी का एम था टू बाय द गुड्स एट चीप प्राइस एंड सेल इट इनटू द हायर प्राइस. सस्ते में खरीदे और महंगे में इसको बेचे. अब
नेवल पावर भी जिसके पास उस टाइम सबसे ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा ट्रेडिंग अच्छे से करेगा, ट्रेडिंग में सबसे आगे होगा, क्योंकि इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, कोई एयरवे नहीं है, कोई रेलवे सिस्टम नहीं है जो यूरोप कंट्रीज तक जाता हो, तो उनके पास मेन एक ऑब्जेक्ट, मेन एक पॉइंट था नेवल पावर। तो सुप्रीम नेवल पावर थी सबसे ज्यादा इंग्लिश के पास, तो ये भी एक बेनिफिट पॉइंट था इंग्लिश के लिए अपने ट्रेड को और आगे बढ़ाने का। सो दिस इज हाउ दे स्टार्टिंग ट्रेडिंग विद इंडिया की क्वीन एलिजाबेथ ग्रांट द सोल ट्रेडिंग परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद इंडिया। नाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक किंग जेम्स वन, आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ किंग जेम्स वन grant the permission or sent the ambassador. Ambassador means representative of another country. Hawkins sent the representative Hawkins to the Jahangir court to give the permission to start factory in Surat. सो इन 1609 में हॉकिंस नाम के एक एम्बेसडर आए, किसके द्वारा भेजे गए वो एम्बेसडर या राजदूत किसके द्वारा भेजे गए, किंग जेम्स वन सेंड द एम्बेसडर हॉकिंस टू द जहांगीर कोर्ट्स फॉर टू गेट द परमिशन, देने के लिए कि हम सूरत में एक फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बट ड्यू टू इंट्रोड्यूस ऑफ पोर्तुगीज जहांगीर विथड्रॉ दैट फरमान। अब जहांगीर से ही परमिशन क्यों ले रहे हैं, व्हाई दे आर टेकिंग परमिशन टू जहांगीर ओनली, बिकॉज मुगल एम्पायर के उस टाइम पे जहांगीर ही थे जो राज कर रहे थे, सुल्तान या एम्परर थे। सो जहांगीर ने बहुत ही मुश्किल नूरजहां के कहने पर परमिशन दी थी, फरमान जारी किया था हॉकिंस को कि आप ट्रेड कर सकते हैं सूरत में, बट पोर्तुगीज ने कहा फ्रॉम 1498 वी डिस्कवर द सी रूट, हम यहाँ पे पहले आए, इतने आसानी से आप इनको ट्रेडिंग के लिए परमिशन फैक्ट्री के लिए कैसे दे सकते हैं। तो जहांगीर विड्रॉ दैट फरमान, जहांगीर ने वो फरमान विड्रॉ कर लिया। नाउ सेकंड एनिमी कौन बन गए इंग्लिश के लिए, नाउ सेकंड एनिमी वाज पोर्तुगीज। सो इन 1612 दे इंग्लिश डिफीटेड पोर्तुगीज। तो जो रास्ते में आता जाएगा उसे हम हटाते जाएंगे, बिकॉज इंग्लिश का एम था फर्स्ट देयर एम इज ट्रेडिंग विद इंडिया and expand their trading for to do whatever they want to do, this they want to do. Okay, so फरमान जारी किया जहांगीर ने, और यू नो उसके बाद जब 1612 में उन्होंने उन्हें हरा दिया तो अगेन फरमान जारी हुआ, जहांगीर ने फिर से उन्हें जहांगीर से परमिशन ले ली और सूरत में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर दी। Now how Britishers increase their trade? अब slowly they just started increasing their trade. We all know कि उन्होंने स्पेनिश को 1598 में डिफीट कर दिया, 1612 में they defeated Portuguese, and then नेक्स्ट एम्बेसडर सर थॉमस रॉ, ये भी आए और दे टेक द परमिशन टू ओपन द फैक्ट्री इन आगरा, अहमदाबाद, बरोच इन 1615। मतलब 1615 तक इनके पास इतने एरियाज हो गए थे वेयर दे स्टार्ट ट्रेडिंग मेकिंग फैक्ट्रीज। यहाँ पे ये लोग फैक्ट्री बनाना स्टार्ट कर दिया था फॉर देयर टेरिटरी, हियर दे स्टार्टेड देयर फैक्ट्री फॉर ट्रेडिंग। नाउ इंग्लिश ऑल्सो स्टैब्लिशिंग द डिफरेंट सिटीज। अब इंग्लिश जो थे वो अलग अलग सिटीज भी स्टैब्लिश कर रहे थे, उन्होंने मद्रास सिटी को स्टैब्लिश किया इन 1639 दे स्टैब्लिश द Madras city. How they established the Madras city? How they get the land? They get the land from Raja Chandragiri. राजा चंद्रगिरी से उनको वो लैंड मिला और उस लैंड पे उन्होंने बनाया सिटी ऑफ मद्रास, और सिटी ऑफ मद्रास पे उन्होंने एक बहुत ही फेमस फोर्ट भी बनाया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सेंट जॉर्ज फोर्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्टिंग कि 1600 क्वीन एलिजाबेथ ने उन्हें परमिशन दी, देन अगेन 1609 किंग जेम्स वन ने एम्बेसडर भेजकर फरमान जारी करवाया, पोर्तुगीज को हराया, एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इन सूरत ऑल्सो, एंड सर थॉमस रॉ ने परमिशन ले ली आगरा, अहमदाबाद, बरोच में। मद्रास में भी इनका कॉन्क्वायर हुआ, मद्रास में भी इन्होंने ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट की, मद्रास सिटी स्टैब्लिश की, वहाँ पे इन्होंने अपना फोर्ट बनाया, फोर्टाइजेशन। अगर कोई कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग करने आई है तो व्हाई इट इज नेसेसरी टू मेक फोर्ट, क्या जरूरत थी फोर्ट बनाने की, बट ये फोर्टाइजेशन भी कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हें पता था कि वी हैव टू एक्सपांड ट्रेडिंग, फॉर टू एक्सपांड आवर ट्रेडिंग एंड ऑल, फोर्टाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो नाउ दे स्टार्टेड ट्रेडिंग विद बंगाल ऑल्सो। बंगाल सारे ऐसे एरियाज जो सी समंदर के पास थे, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन, अरेबियन सी के पास में थे, वो सारे ऐसे स्टेट्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि वहाँ से वो फोर्ट बना के इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे यूरोप या डिफरेंट कंट्रीज में। सो नेक्स्ट स्लाइड, परमिशन फ्रॉम इंग्लैंड। नाउ अनदर परमिशन, दिस इज ऑलवेज इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी कम अंडर द ब्रिटिशर्स के अंदर आती थी जो इंग्लैंड में थे, वो हमेशा उनको परमिशन देते थे, उसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी कदम उठाती थी। तो किंग चार्ल्स टू ऑल्सो गिव द परमिशन टू द कंपनी टू इशू कॉइन्स। उन्होंने कहा कि आप अपने कॉइन्स भी इशू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यू कैन ऑल्सो बिल्ड द फोर्ट, आप वहाँ पे फोर्ट भी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि यू कैन डू द वॉर और पीस अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, आप सर्कमस्टेंसेस से अकॉर्डिंग लड़ाई झगड़ा और शांति भी बनाए रख सकते हैं, आप अपनी आर्मी भी क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड द इंटेंशन, जब आप ट्रेड करने आए आपको फोर्टाइजेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉइन इशू करने की जरूरत नहीं है, आपको आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है जो ट्रेडिंग में किसी काम की नहीं, बट उनके इंटेंशन स्लोली ग्रेजुअली देयर इंटेंशंस चेंज्ड एंड दे जस्ट थिंक टू annex the territories. So for this they start making army, they just start to war against the Indian territories, build fort, coins and etc. So 1688 King Charles II also handed the Bombay Island to company. Bombay Island, how the King Charles get the Bombay Island, King Charles II get the Bombay Island, because Bombay Island was come under the Portuguese, and when King Charles II ने married with the Portuguese princess, he get that island, और फिर 1688 में वही सेम आइलैंड King Charles II ने किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। मीन्स इजी है, पोर्तुगीज सबसे पहले आए, बम्बई आइलैंड भी पोर्तुगीज के अंदर था, बट पोर्तुगीज की प्रिंसेस से जब किंग चार्ल्स II ने शादी करी तो पोर्तुगीज ने वो आइलैंड किंग चार्ल्स II को दे दिया, और किंग चार्ल्स II ने वही सेम आइलैंड मीन्स आइलैंड हमारा
हमारा और वो दूसरी कंट्री का रख के दे आर गिफ्टेड टू ईच अदर। तो बॉम्बे आयरन उन्होंने कंपनी को दे दिया 1688 में कि आप इस पे भी पोर्ट बना के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इन 1691 में उन्होंने अपनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी पे भी अजम्पशंस लगवा लिए कि नहीं वी डेंट पे, हम आपको पे नहीं करेंगे। पहले स्टार्टिंग में पे कर रहे थे बट स्लोली उन्होंने मना कर दिया। तो मोस्ट मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम दे आर पेइंग 3000 सम कस्टम ड्यूटी फॉर ईयर, एक साल के लिए वो सिर्फ 3000 रुपीज़ ही पे कर रहे थे। नाउ इन 1698 इन्होंने कुछ और भी डेवलप किया, या कन्वर्ट द 3 विलेजेस इनटू सिटी ऑफ बंगाल। बंगाल के 3 विलेजेस को इन्होंने एक सिटी में कन्वर्ट किया जिसका इन्होंने नाम दिया कलकत्ता, और विच इज करंटली द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। सो ये कुछ परमिशंस थी जो लेने के बाद स्लोली आप समझ ही रहे होंगे कैसे धीरे धीरे इंडिया को कैप्चर किया जा रहा है। नाउ राइवलरी अमंग्स द डिफरेंट कंपनीज इन इंडिया। अब ऐसा क्या था जो सब यूरोपियन कंट्रीज इंडिया के लिए ही लड़ रही थी, ऑल दे वांट टू ट्रेड विद इंडिया ओनली। ऐसा क्या था कि सबको इंडिया में ट्रेड करना था, सबको एक दूसरे से लड़ाई करनी थी, एंड ऑल दे वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया बिकॉज दे ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाय द सेम काइंड ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, बिकॉज दे वांट टू बाय एंड दे इंटरेस्टेड टू बाय ब्लैक पेपर, कार्डेमम, क्लोव, सिनेमन, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची एंड देन लौंग। ये सब जो गरम मसाले थे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ईजिली इनका एग्रीकल्चर उनके यूरोप कंट्रीज़ में नहीं था और इतने चीप प्राइस में उनको जो इंडिया से मिल रहा था एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करने के लिए अपने पास, तब भी वो इतना चीप प्राइस में वो वहाँ पे एग्रीकल्चर में नहीं कर पाते। सो दैट्स व्हाई ऑल आर इंटरेस्टेड टू डू ट्रेड, परचेज द सेम थिंग। सबको ये सारी यूरोपियन कंट्री को यही सब सेम चीज़ें खरीदनी थी। अब दिक्कत ये आने लगी जब सबको सेम चीज़ खरीदनी है, देन व्हेन डिमांड इज हाई द प्राइसेस, जब डिमांड हाई होगी तो प्राइसेस और चीज़ें कम तो प्राइस तो बढ़ेंगे ही, तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए। प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज थी इनको लॉस होने लगा, उनको इतना फायदा नहीं हुआ। तो नाउ दे जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हमें ज़्यादा से वी वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, सो वी हैव टू रिमूव अवर राइवल्स, अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाओ जो इंग्लिश स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, स्पेनिश, पोर्तुगीज, लाइक दिस। सो दे जस्ट स्टार्टिंग राइवलरीज को हटाना उन्होंने शुरू कर दिया। व्हाट दे आर डूइंग, दे जस्ट सैंक ईच अदर शिप, एक दूसरे की शिप्स को डुबाना, आग लगा देना, जस्ट फाइट विद ईच अदर, ब्लॉक ईच अदर शिप, एक दूसरे की शिप को ब्लॉक कर देना, डुबा देना, जला देना, ये सब वो करने लगे। सो इंग्लिश इन सब में से आगे बढ़ गए, सारे यूरोपियन कंट्री से टॉप में आ गए क्योंकि इन्होंने सबके साथ अच्छे से फाइट कर ली, स्पेनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, सबके साथ इनका आपस में फाइट हुआ एंड टॉप पे आ गए अब इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। दे जस्ट नाउ स्टार्टेड प्रॉपरली एंड रिलैक्सिंगली, दे जस्ट स्टार्टेड ट्रेडिंग विद इंडिया। ओके, नाउ अगर आपको वो मिल जाता है जो आपको चाहिए तो आप उसके बाद भी शांत नहीं बैठते, जैसे कि ब्रिटिशर्स थे, ट्रेडिंग करना चाहते थे और ट्रेडिंग हो भी रही थी, बट अब उनका ये था कि इंडिया में कोई भी अभी कोई सुपर पावर नहीं है, कोई भी ऐसा राजा नहीं है जो पूरे इंडिया पे रूल कर रहा हो, और इंडिया के लोग भी बहुत भोले हैं, आसानी से इनकी बातों में भी आ जाते हैं। तो क्यों ना ये छोटी छोटी टेरिटरीज के साथ लड़ाई करके, फाइट करके हम इनकी टेरिटरी को भी जीत लें, और फिर ट्रेडिंग के लिए जो उनको पैसा देना पड़ रहा है, ज़मीन के लिए जो रेंट देना पड़ रहा है, फैक्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हमें पता था कि इंडिया में कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी, कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी। इंडिया में होता था कि जिस एरिया का जो भी किंग है वो उस एरिया को डिफरेंट प्रोविंसेस में इंडिया बटाता, तो कोई भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं था कि इंडिया का कोई बैठकर सिर्फ एक राजा चला रहा। तो उनका ये था कि बंगाल से जाकर बंगाल से फाइट कर लो, पंजाब जाकर पंजाब के किंग से फाइट कर लो, महाराष्ट्र जाकर मराठा किंग से फाइट कर लो। ऐसे करके इनका मेन एम था कि ऐसे फाइट करते जाओ, वो एरिया जीतते जाओ और लेट्स अनेक्स दैट एरिया। So first important battle that fought by Britishers was Battle of Plassey in 1757. 1757 Battle of Plassey was the very important battle versus Britishers versus सिराजुद्दौला, बंगाल नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके बीच और ब्रिटिशर्स के बीच हुई Battle of Plassey. Battle of Plassey fought near the bank of Bhagirathi, which is about 150 kilometer away from Bengal. Now capital of at the time of Bengal was Murshidabad. It's बाय सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने इसको कैपिटल बनाया था मुर्शिदाबाद को। एंड सन अलीवर्दी खान वॉज सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला अलीवर्दी के खान के बेटे थे और इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, बट ब्रिटिशर्स ने उनको इस बैटल में हरा दिया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड बंगाल नवाब इन द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड अनेक्स द बंगाल। अब बंगाल पूरा उनके हाथ में आ चुका था। उस समय वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल नहीं था, पूरा बंगाल का जो एरिया है वो पूरा का पूरा दैट कम अंडर द हैंड ऑफ द कंपनी। कंपनी के अंदर इसका पूरा बंगाल का पावर आ गया था। यू कैन सी इन द पिक्चर, हमारी आर्मी ज़्यादा होने के बाद भी हम ब्रिटिशर्स, सिराजुद्दौला मीन्स ब्रिटिशर्स से हार गए। क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, उनके पास एक टेक्निक्स थी कि उनको पता था कि किस तरीके से इनको हराया जाए। तो फर्स्ट बैटल जीतने के बाद उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर हम ये बैटल जीत सकते हैं तो हम इस तरीके से पूरे इंडिया को कैप्चर कर सकते हैं। कितना आसान है एक कंट्री को स्लेव बनाना और ट्रेड के
स्टार्टिंग ट्रेड से करना और फिर धीरे धीरे अपनी ट्रेड टेरिटरी बढ़ाना। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर इज इन बिहार, बक्सर बिहार में है। दिस बैटल ऑफ बक्सर इज फॉट इन 1764 बिटवीन, अब यहाँ पे सिर्फ ब्रिटिशर्स वर्सेस कोई एक राजा नहीं है, यहाँ है ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के जो नवाब हैं वो भी हैं, क्योंकि एक बार हारने के बाद ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई और नवाब नहीं होते थे, वहाँ पे और सेकंड नवाब भी होते थे, क्योंकि ये लोग उन्हें मारते नहीं थे। ये जस्ट थिंक कि आपको नवाबशिप मेंटेन करनी है, आप मेंटेन करके रहिए, आप रेवेन्यू वहाँ से कलेक्ट करके और जो हम ऑर्डर दे रहे हैं आपको वो मानना पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, रिवर गंगेज के पास इन्होंने फाइट किया बैटल ऑफ बक्सर। किस किस के बीच, ब्रिटिशर्स वर्सेस मीर कासिम बंगाल नवाब, सुजाउद्दौला अवध नवाब। सुजाउद्दौला एंड सिराजुद्दौला डिफरेंट, सिराजुद्दौला इज बैटल ऑफ प्लासी एंड सुजाउद्दौला इज द नवाब ऑफ अवध, बैटल ऑफ बक्सर। एंड शाह आलम टू मुगल एम्पायर, 3 किंग्स या 3 एम्परर वर्सेस ब्रिटिशर्स फाइट हुई थी। इस फाइट में तो हमें जीत जाना चाहिए था, बट we lost this battle also. Battle of Buxar also lost by the Bengal, Awadh and Mughal emperor with Britishers. Britishers defeated, but after defeating in the Battle of Buxar, they just defeated them, but they didn't kill them. जैसा मैंने आपको बताया उन्हें मारते नहीं थे, they just gave an offer कि okay let's make a treaty, एक संधि करते हैं। treaty means संधि, संधि में ये कि जो भी उन्होंने लिखा हो कि इस तरीके से होगा, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन दैट्स कम अंडर द ट्रीटी। तो उन्होंने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद करी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन बाय द लॉर्ड क्लाइव ने उस पर साइन किया, और उस ट्रीटी में लिखा था कि यू वांट टू मेंटेन योर नवाबशिप, इफ यू वांट टू मेंटेन योर नवाबशिप ऑफ दैट एरिया, ओके सो मेक दैट नवाबशिप, बट वी वांट 30 लाख पर ईयर, हमें 30 लाख रुपए सालाना रेवेन्यू चाहिए उस एरिया से। सो पर्टिकुलर एरिया से ये लोग 30 लाख रुपए रेवेन्यू लेते थे उन राजाओं से हर साल। उन्हें नहीं पता वो रेवेन्यू कलेक्शन प्रॉपर्टी हो भी रहा है या नहीं, वहाँ फेमाइन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर हो भी रहा है या नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको 30 लाख रुपीज़ अपनी नवाबशिप मेंटेन करने के लिए ब्रिटिशर्स को देना ही पड़ते थे। Now let's next discuss the Anglo-Mysore War series. Why it's series? Why it's not a war? Because Anglo-Mysore War सिर्फ एक बार नहीं हुई, मैक्सिमम 1 2 3 4 टाइम्स Anglo-Mysore War हुई। Anglo-Mysore War के पहले मैसूर के राजा या मेन पावरफुल किंग थे हैदर अली। हैदर अली के बाद उनके बेटे थे टीपू सुल्तान। दोनों ही बहुत पावरफुल रूलर थे, दोनों ही बहुत करेजियस रूलर थे। टीपू सुल्तान के बारे में तो हम जानते हैं, उनकी स्वॉर्ड, उनकी जो तलवार है वो आज भी रखी हुई है म्यूजियम में। बहुत ही फेमस और बहुत ही पावरफुल किंग थे टीपू सुल्तान, बहुत ही पावरफुल सुल्तान थे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान से ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं डरते भी थे। ब्रिटिशर्स जस्ट बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी हुई, तो बैटल ऑफ प्लासी में फ्रेंच ने साथ दिया था सिराजुद्दौला का। फ्रेंच हमारे साथ रहते थे क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त टाइप। तो जो पोर्तुगीज, जो डिफरेंट कंट्रीज थी, डिफरेंट यूरोपीय कंट्रीज थी, वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प कर रही थी इंग्लिश से लड़ने के लिए, क्योंकि इंग्लिश उनके लिए भी एनिमी थे और इंग्लिश के एनिमी भी वो थे। तो इंग्लिश के एनिमीज हम भी थे और वो भी थे, तो वो हमारे कहीं ना कहीं फ्रेंच हमारी हेल्प करते थे। वैसे ही फ्रेंच के साथ एक अच्छा रिलेशन था इसका, टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं इंटेंशन पता थे ब्रिटिशर्स के या ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बढ़ता है। उनकी कैपिटल थी टीपू सुल्तान की, मैसूर की कैपिटल थी सेरिंगपट्टम, जिससे कैपिटल से उनको बेहद प्यार था। ही लव टू मच हिज कैपिटल, एंड उनकी कैपिटल या उनके एरिया के अंदर आता था मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट, दैट कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट था क्योंकि ब्रिटिशर वहाँ से परचेस करते थे पेपर एंड कार्डेमम। पेपर एंड कार्डेमम वहाँ से परचेस करते थे, टीपू सुल्तान को ये पता था। बट इन 1785 टीपू सुल्तान ने वो एक्सपोर्ट ही बंद करवा दिया। टीपू सुल्तान ने कहा कि आप यहाँ से ना तो सैंडलवुड, ना पेपर, ना कार्डेमम, कुछ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करोगे। टीपू सुल्तान की इस टेक्निक को देखकर ब्रिटिशर्स और ज़्यादा आग बबूला हो गए। उन्हें और ज़्यादा गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा राजा है जो हमारे साथ हम ट्रेड करने के लिए रेडी नहीं है एंड ऑल। और कहीं ना कहीं वो डरते भी थे। बट कंटिन्यूस वॉर लड़ने के बाद दे जस्ट थिंक कि हैदर और टीपू एम्बिशियस है, एरोगेंट है, डेंजरस रूलर है, ऐसा कंपनी सोचती थी। बट कंपनी को क्या काम था, कंपनी के पास आर्मी थी, कंपनी दे जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग, वो बस लड़ते थे, आज नहीं तो दूसरी वॉर में जीत जाएंगे, दूसरी वॉर में उनके लिए लाइफ का कोई भी वैल्यू नहीं थी। तो 4 कंटिन्यूस वॉर उन्होंने लड़े, 67 to 69, 80 to 84, then 92, 92 and then in 1799 last Anglo-Mysore War which Tipu Sultan died in this war while saving his capital सेरिंगपट्टम। अपनी सेरिंगपट्टम को कैपिटल को बचाने के चलते टीपू सुल्तान की डेथ हो गई इन एंग्लो-मैसूर वॉर एंड दे कैप्चर मैसूर ऑल्सो। तो शुरुआत हुई थी सूरत से ट्रेडिंग करने से, आगरा, अहमदाबाद, मद्रास, फिर उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट किया बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी में बंगाल, फिर उन्होंने कैप्चर किया बैटल ऑफ बक्सर में बिहार, उड़ीसा एंड इलाहाबाद ट्रीटी करी, और फिर एंग्लो-मैसूर वॉर से उन्होंने साउथ के भी कुछ पार्ट को कॉन्क्वायर, आधे से ज़्यादा हिस्से को कॉन्क्वायर या नेक्स्ट कर लिया। देन दे फाइट विद मराठास के साथ भी उन्होंने कंटिन्यूस एटलीस्ट 4 वॉर फॉट बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स। मराठास टाइम पे स्लोली जो थे वो डिक्लाइन हो गए थे, क्योंकि हमको पता है कि वी ऑल नो दैट मराठा क्रश्ड आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, वो क्रश्ड हो चुके थे 1761 में जो हुई थी। सो मराठास हिंदू जो थे वो 19 क्लैंस में डिवाइड हो गए थे। 19 क्लैंस मतलब टुकड़ी, 90 टुकड़ियों में डिवाइड हो गए थे। दे मेक देयर कॉन्फेडरेसी मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैविंग द सेम एम। इस तरीके का लोगों ने ग्रुप बना लिया था कि हम सबको इनके अगेंस्ट फाइट करना है। और ये 19 क्लैंस की जगह एक यूनाइटेड अगर एक मराठा किंगडम होती उस समय तो शायद ब्रिटिशर्स को कड़ी टक्कर दे पाते, बट मराठास के साथ भी ऐसा नहीं हुआ और इन्होंने 1817 में तक महाराष्ट्र को भी एनेक्स्ड कर लिया।
डिस्कस विद द रिलेशनशिप विद सिख। ब्रिटिशर्स के सिख के साथ कैसे रिलेशंस थे? ब्रिटिशर्स के सिख के साथ अच्छे रिलेशन थे, जस्ट बिकॉज सिख का जब भी हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, बिकॉज ही वॉज अ सिख रूलर, सिख वर द फाइनेस्ट सोल्जर इन इंडिया, दे ऑलवेज वॉन्टेड दैट महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड द होल पंजाब और कंट्रोल द होल पंजाब। वो हमेशा से चाहते थे कि महाराजा रंजीत सिंह पूरे पंजाब को कैप्चर करे। रंजीत सिंह वॉज चीफ ऑफ शुक्रा चाकिया मिस्ल। हमने लास्ट 7th क्लास में डिस्कस किया था कि जो सिख थे उन्होंने अपने आप को 12 मिस्ल में डिवाइड किया था और एक मिस्ल का नाम था शुक्रा चाकिया मिस्ल। उस मिस्ल के हेड थे महाराजा रंजीत सिंह। सो महाराजा रंजीत सिंह से सब बहुत प्यार करते थे। वो एक करेजियस, एक बोल्ड, एक स्ट्रॉन्ग, गुड पर्सनैलिटी, एम्बिशियस, एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग, मीन्स जितनी तारीफ की जाए उतना कम थे महाराजा रंजीत सिंह। सो महाराजा रंजीत सिंह ने फाइट नहीं किया ब्रिटिशर्स के साथ, एक ट्रीटी करी, संधि करी। कई राजा ऐसे थे जो फाइट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि फाइट करने से ज़्यादा बेटर होगा कि ब्रिटिशर्स के साथ संधि कर लें। तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी संधि की, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ये सेकंड इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। इस ट्रीटी में उन्होंने रिवर सतलज जो पंजाब के से निकलती है उससे उस रिवर सतलज को बाउंड्री बना दिया कि इस तरफ वाला जो एरिया है दैट कम अंडर द ब्रिटिशर्स और पंजाब वाला जो एरिया है दैट्स कम अंडर द महाराजा रंजीत सिंह। देन लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, टी फॉर टीपू, टी फॉर टाइगर ऑफ मैसूर। एंड सिख में महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है लॉयन ऑफ पंजाब। एक्चुअल में ही वॉज द लॉयन ऑफ पंजाब। नाउ उन्होंने अपना एम्पायर एक्सटेंड किया, देख सकते हैं आप इस मैप की मदद से। सतलज रिवर जो है वो उनके लिए क्या थी, एक बाउंड्री थी। वेस्ट में सुलेमान माउंटेन और कश्मीर तक इनका जो था वो कॉन्क्वायर था। नाउ इन 1839 महाराजा रंजीत सिंह डाइड और उसके 10 साल बाद 1849 तक दे ऑल्सो कैप्चर्ड पंजाब। उन्होंने पंजाब को भी कैप्चर कर लिया। सो ये थी एक, मतलब आप समझिएगा द इंटेंशन ऑफ द ब्रिटिशर्स कि सिर्फ ट्रेड करने आए थे। पर्तुगीज के बाद से उन्हें पता चला था कि इंडिया जैसी कोई कंट्री है। क्वीन एलिजाबेथ ने उनको ग्रांट किया, उसके बाद किंग जेम्स वन ने एम्बेसडर भेजा, फिर उसके बाद चार्ल्स टू ने परमिशन दी, फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री खोली, फिर उसके बाद मद्रास में भी फोर्ट बनाया, फिर उसके बाद इलाहाबाद, आगरा, बरोच। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये तो हम परमिशन लेके कर रहे हैं, इसके बाद तो हमें पैसा भी देना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम कॉन्क्वायर करें। तो इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी 1757 से इन्होंने बंगाल जीत लिया, बक्सर से इन्होंने बिहार, उड़ीसा और इलाहाबाद का एरिया ट्रीटी के अंदर ले लिया। इनको 30 लाख रुपए ईयर्स मिलते थे। और फिर उसके बाद उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर करी, मराठा अपने अंदर एनेक्स कर लिया। फिर मैसूर में टीपू सुल्तान मैसूर अपने अंडर कर लिया। सिख के साथ पंजाब इन्होंने पूरा कॉन्क्वायर कर लिया। तो हाफ ऑफ द इंडिया सिर्फ 100 साल से भी कम में, फ्रॉम 1765 टू 1848 तक 100 साल से भी कम में उन्होंने आधे से ज़्यादा इंडिया अपने अंडर में कैप्चर कर लिया। As you can see in the screen with the help of this map, it's how they conquered the half of the India in less than 100 years. सो ओके, नाउ अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? स्टार्टेड ट्रेडिंग भी कर दी, फोर्टाइजेशन भी हो गया, कॉइन इशू भी करना स्टार्ट कर दिए, आधे से ज़्यादा इंडिया को भी कैप्चर कर लिया। ओके, नाउ दे नो कि इन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छा तो नहीं किया, इंडिया के लोगों का दिल तो नहीं जीता। इंडिया हमेशा से ही कहीं ना कहीं कभी ना कभी स्लेव थे। इंडियंस स्लेव मीन्स कि हम कभी ना कभी किसी राजा रानी के अंडर में ही रहे। हम अगर एंशिएंट टाइम की बात करें तब भी हम किंग्स के अंदर में ही थे। उसके बाद अगर हम मिडिवल में बात करें तो दिल्ली सुल्तान, खिलजी डायनेस्टी, देन स्लेव डायनेस्टी, डिफरेंट डायनेस्टीज। उसके बाद हम मुगल एम्परर्स के अंदर रहे। फिर ब्रिटिशर्स से भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट ब्रिटिशर्स जो थे उनका इंटेंशन इंडियंस को अच्छा समझना था ही नहीं। इंडियंस उनके लिए सिर्फ एक रिसोर्स थे, मीन्स सिर्फ एक मशीन थे जो उनके लिए वर्क करेंगे जो वो चाहेंगे। और इंडिया सिर्फ उनके लिए एक ऐसी जगह थी जहाँ से वो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे उनको मैन फोर्स भी मिल रहा था कि लोग भी मिल रहे थे काम करने के लिए। यहाँ पे उनको चीप रेट में मटेरियल भी मिल रहा था और वही मटेरियल को जब ये फिनिश गुड में कन्वर्ट करके हमें बेच रहे थे हायर प्राइसेस में, हम उनसे खरीद भी रहे थे वो चीज़ें। सो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जो ब्रिटिशर्स आने के बाद कॉन्क्वायर्ड हो गई, स्टार्ट हो गई। ब्रिटिशर्स ने जब इंडियन टेरिटरी को कॉन्क्वायर्ड किया, सो ये सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? अब ब्रिटिशर्स करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनके साथ हमने इतना बुरा किया है, इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं, तो कभी ना कभी इंडियंस रिबील तो करेंगे, दोबारा हम पे आके झगड़ा तो करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वर्क शुरू करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के लिए इन्होंने अपने जो जितने भी एरिया को इन्होंने कैप्चर किया था, नेक्स्ट किया था, कॉन्क्वायर किया था, उसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सो फर्स्ट हमारे इन्होंने अपने जो हेड होते थे उस तरीके से बनाए कि जो स्टेट का हेड होगा वो गवर्नर, देन गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद आए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सो पहला एडमिनिस्ट्रेशन का था इनका सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज की हेल्प से ये लोग इंडिया में एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते थे। बट सिविल सर्विसेज में भी इनका ये था कि द सिविल सर्विसेज वाज द स्टील फ्रेम ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, मच कोवर्टेड बाय द यंग पर्सन ऑफ एस्ट्रियोटिक फैमिली, मतलब भव्य फैमिली जिनके पास पहले से ही पैसा है वही इसमें इंटरेस्टेड थे बिकॉज ऑफ द हैंडसम सैलरी एंड द पोस्ट एंड द पावर। सिविल सर्विसेज आज की जितनी इंपॉर्टेंस है सिविल सर्विसेज की, IAS IPS की, वो शायद ब्रिटिशर्स की ही देन है। और ब्रिटिशर्स ने हमको जो है इस टाइम पे भी लोगों को ये था कि हायर सैलरी मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, पावर मिलेगी, बट इंडियंस के लिए सिविल सर्विसेज में कोई फायदा नहीं था, जस्ट बिकॉज इन्होंने कुछ रूल्स बना के रखे थे। इन्होंने रूल्स बना के रखे थे कि लंबे समय तक तो पहले ये
थे, ये जिसे नॉमिनेट करते थे पोस्ट में वही उस पोस्ट का एक्चुअल ओनर होता था, वही उस पोस्ट को हेल्ड करता था। बट इन 1853 से इन्होंने स्टार्ट किया कि ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स किए जाएंगे और उस एग्जाम्स में इंडियन को प्रोहिबिट थे, इंडियंस उसमें अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1793 में इन्होंने कह दिया था कि वो पोस्ट दैट हैविंग मोर देन 500 यूरो सैलरी, दैट फॉर दैट पोस्ट इंडियन नॉट अलाउड फॉर टू फिल फॉर दैट पोस्ट, इंडियन उस पोस्ट के लिए फिल ही नहीं कर सकते। इंडियंस आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर द जुडिशियल पोस्ट एंड द इंजीनियरिंग पोस्ट, इंडियन ना तो जुडिशियल पोस्ट में जाएंगे ना इंजीनियरिंग पोस्ट में जाएंगे, ऐसा कहना था ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स ने सिविल सर्विस स्टार्ट की थी, एटलीस्ट वो हमारे इंडिया में बहुत सारा डेवलपमेंट करेंगे, हम मॉडर्न इंडिया में यही पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स ने ये किया, ब्रिटिशर्स ने रेलवे, ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने आर्मी, ब्रिटिशर्स ने पार्लियामेंट, ब्रिटिशर्स ने सब कुछ, बट दे आर डूइंग दिस ऑल थिंग्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। वो सिर्फ ये अपने फायदे के लिए कर रहे थे। हाँ, आज उस किए हुए फायदे का हमें फायदा हो रहा है, बट उन्होंने शुरू अपने फायदे के लिए ही करा था। उन्होंने नहीं सोचा था कि हम यहाँ से चले जाएंगे और इस चीज़ का फायदा इंडियंस उठाएंगे, नहीं, दे नेवर थिंक लाइक दिस। तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिविल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि हम इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भी इंडियंस के साथ नहीं कर सकते, इंडियंस हार्ड वर्किंग है, एफिशिएंट है, सबसे बड़ी बात लॉयल है, अगर वो हमारी आर्मी में भी रहेंगे तो सिर्फ हमारी तरफ से ही लड़ेंगे, चाहे वो अपने ही लोगों से उन्हें क्यों ना लड़ना पड़े। तो इसके लिए उन्होंने 2 कॉलेज स्टैब्लिश किए, एक कलकत्ता में विलियम कॉलेज स्टैब्लिश किया और एक लंदन में कॉलेज स्टैब्लिश किया, ईस्ट इंडिया कॉलेज। बट कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम था इंडिया में नहीं होता था, इसे देने के लिए भी इंग्लैंड जाना पड़ता था, इंग्लैंड में इसके एग्जाम होते थे। सेकेंड इंपॉर्टेंट, आर्मी। आप आर्मी ही बना लीजिए ना, अगर आप आर्मी बना लेंगे तो यूरोपियन राइवल से आप सेव हो जाएंगे। अगर डच ने कभी आकर आपसे फाइट करी, फ्रेंच आपसे कभी आके फाइट करना चाहेंगे, इंग्लिश पोर्तुगीज कभी फाइट करना चाहेंगे, हॉलैंड, डेनमार्क, डच, कोई भी आपसे फाइट करना चाहेगा, आपके पास आर्मी है, वो कितनी आर्मी लेकर आ पाएंगे, राइवल से प्रोटेक्ट रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपनी और टेरिटरी जितनी बढ़ाई है उसको और बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, आर्मी चाहिए। सैलरी, लेकिन इसमें भी ये लोग आर्मी में इंडिया के लोगों को रखते थे, लेकिन हाईएस्ट पोस्ट सूबेदार से ज़्यादा नहीं देते थे और 300 रुपये सैलरी से ज़्यादा इंडियंस को सैलरी नहीं देते थे, जस्ट बिकॉज ये इंडियन को ऑलवेज इन्फीरियर फील कराना चाहते थे। अगर इंडियन सुपीरियर फील कर लेंगे, हाईएस्ट पोस्ट ले लेंगे, तो ब्रिटिशर्स दब नहीं जाएंगे, और ब्रिटिशर्स दब जाएंगे तो हम उनकी गुलामी कैसे करेंगे, हाउ वी ऑलवेज बिकम स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो ये है कुछ उनकी टेक्निक्स। थर्ड टेक्निक थी उनकी, थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन था पुलिस सर्विस। पुलिस सर्विस ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, उसके लिए भी इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनाया था, हर थाने का एक दरोगा होता था, वॉचमैन ऑफ द विलेज। दरोगा इतने फेमस नहीं थे, दरोगा ये हरेस करने के लिए, ब्राइब लेने के लिए, इन सब के लिए ज़्यादा फेमस थे, तो दरोगा की पोस्ट कभी इतनी फेमस रही नहीं। हर एक चीज़ में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू होने के बाद से ही ये समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इंडियंस रिबील्स तो करेंगे, और वो रिबील कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बन रही थी ऑफ 1857 की जो रिवोल्ट है, उसकी कहीं ना कहीं एक सीढ़ी बन रही थी जिससे ये रिवोल्ट होगा। सो फोर्थ एंड लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स ने किया वो था जुडिशियल सर्विस। जुडिशियल सर्विस मीन्स ये जस्टिस के लिए काम करेंगे, जस्टिस देंगे लोगों को। वॉरेन हेस्टिंग जो पहले गवर्नर जनरल थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, बट वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, बट 1787 में इनके ऊपर भी एक इम्पीच फॉर करप्शन का चार्ज लगा था, और इन्होंने 1795 में कहा जाता है कि इन्होंने सुसाइड कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग में। सो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स डिवाइड किए थे, सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट नॉन एज फौजदारी अदालत एंड क्रिमिनल कोर्ट नॉन एज दीवानी अदालत। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आते थे काजी, मुफ्ती, ब्राह्मण्स जो थे उनका जो लॉ, वो लोग ब्राह्मण्स और जो मुस्लिम काजी वगैरह थे इनको बिठा कर रखते थे कि अगर कोई भी ऐसे अगर प्रॉब्लम आती है, केस आते हैं जो रिलीजियस से रिलेटेड है, तो हम आपके लॉज में अप्लाई करेंगे। तो जो शरीयत कानून था मुस्लिम का, उसमें लॉ उसमें इंप्लीमेंट होता था, उसमें यूज़ होता था, और हमारा जो थे शास्त्र के अकॉर्डिंग हमारा जो लॉ थे वो हम यूज़ करते थे अगर कोई भी किसी को भी जस्टिस दिलानी है तो। बट ये प्रोसेस ब्रिटिशर्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो 1775 1778 तक इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों लॉ को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कंपाइल कर लिया। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट दैट वन इन इंडिया जो होती है एक पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट वो भी बनाई इन्होंने 1773 न्यू सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश, और इन्होंने एक अपील कोर्ट भी बनाई कलकत्ता में, दैट सरदार निजामत अदालत। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन करने का कारण था बांध कर रखना, क्योंकि खुद सोचिए स्टार्टिंग में ये आसानी से हम पे कैप्चर क्यों कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में कोई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, कोई प्रॉपर पावर नहीं थी। प्रॉपर पावर आ गई, अब ब्रिटिशर्स प्रॉपर पावर बन गए, सुपर पावर बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब कोई भी इजीली इंडिया में आके ब्रिटिशर्स को हरा नहीं सकता। इंडिया के खुद के लोग भी अब ब्रिटिशर्स के अंडर हैं, वो भी उनको तो लाचार ही हो गए एक तरीके से। सारे जितने भी हमारे महान शासक थे वो भी हार ही चुके हैं कहीं ना कहीं इनके सामने। देन लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, जो वो यूज़ कर रहे थे, दैट साम दाम दंड भेद। ऐसे नहीं तो ऐसे ये टेरिटरी आ जाए, ऐसे नहीं तो ऐसे ये टेरिटरी आ जाए, और ऐसे नहीं तो ये तरीके से तो टेरिटरी हमारी हो ही जाएगी। 4 तरीके थे, 4 मेथड फॉर एक्सपांशन। फर्स्ट मेथड थी द डॉक्ट्राइन ऑफ लेट्स। If you are not having a maid hire, the territory is come under the Britishers. Simple. सतारा, नागपुर, झांसी, जयपुर, उदयपुर, संबल, भागट, सबको इन्होंने ऐसे ही कैप्चर या नेक्स्ट किया। Electness by electness government. कुछ स्टेट्स को ये कह देते थे that you are not competent to rule that.
एलिट मिसगवर्नमेंट। कुछ एरिया या कुछ स्टेट्स को ये कह देते थे दैट यू आर नॉट कॉम्पिटेंट टू रूल प्रॉपरली ऑफ दैट एरिया, तो गिव दैट एरिया टू अस, वी आर कॉम्पिटेंट टू रूल दैट एरिया, हम प्रॉपरली इस पर रूल करेंगे। ऐसी औध को इन लोगों ने अपने अंडर ले लिया था कि आप नहीं कर पा रहे हैं, आप गवर्न ही नहीं कर पा रहे, जस्ट गिव इट टू अस, वी विल डू दिस। ये इनका सेकंड था। एंड थर्ड मेन था इनका बाय कॉन्क्वेस्ट। बाय कॉन्क्वेस्ट मीन्स कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ये कर ही रहे थे, बंगाल हड़पा इन्होंने ऐसे, बिहार हड़पा इन्होंने ऐसे, इन्होंने हैदराबाद, इन्होंने इलाहाबाद, इन्होंने बैटल ऑफ मैसूर, इन्होंने मराठास, इन्होंने पंजाब, सब तो इन्होंने बाय कॉन्क्वेस्ट लड़ाई करके हड़पा। So by conquest means by British fought number of wars to expand their empire. And last but not the least, by subsidiary alliance. Subsidiary alliance means कि आर्मी ही मत बनाने दो, टेरिटरीज को कहो कि आर्मी बनाने की क्या जरूरत है, हम है ना ब्रिटिशर्स मेन पावर, जब हम मेन पावर बैठे हुए हैं सुप्रीम पावर, तो क्या जरूरत है छोटी छोटी टेरिटरीज को आर्मी बनाने की, हम बनाएंगे आर्मी, आप जो आर्मी पैसा खर्च करते हैं वो हमें दीजिए, नाउ यू आर प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। अब कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इससे फायदा ये होगा कि कभी वो हम पे अटैक ही नहीं कर पाएंगे, और करना भी चाहे तो उनके पास आर्मी नहीं है, तो इस तरीके से तो वो कैप्चर कर ही लेंगे। किया भी था उन्होंने, हैदराबाद कैप्चर किया, मराठा के बाजीराव, महाराष्ट्र का हाफ ऑफ द एरिया कैप्चर किया बाजीराव टू से। सब्सिडरी अलायंस के लिए उन्होंने हाँ बोल दिया था, ट्रीटी ऑफ बेसेंट में बाजीराव टू ने बोल दिया था कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे आर्मी, आप प्रोटेक्ट करिए, हम आपको पैसा देंगे, और नहीं देंगे पैसा आप हमें, तो ब्रिटिशर्स वो एरिया खुद कैप्चर कर लेंगे, अनेक्स कर लेंगे। नहीं मान रहे फिर भी आर्मी बना रहे हैं तो वॉर से लड़ लेंगे, तब भी नहीं मान रहे तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, कभी ना कभी तो इनका मेल हायर नहीं होगा, कभी ना कभी तो इनकी लड़की होगी सिर्फ, तो भी इनका कैप्चर कर लेंगे। कुछ भी नहीं हो पाए तो वॉर तो हमारे पास है ही। तो साम दाम दंड भेद से धीरे धीरे इन्होंने पूरे तरीके से हाफ से भी हाफ से ज़्यादा इंडिया को कैप्चर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन करके इन्होंने एक अच्छी पावर बना ली इंडिया में। उसके बाद इन्होंने एक्सपांशन के लिए कुछ रूल्स बनाए जिससे इन्होंने एक्सपांड भी किया, और आगे भी हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे इनके इंटेंशंस, इनकी चीज़ें। सो इस चैप्टर से सबसे पहले एक रिकॉल ले लेते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ। विद स्टार्टिंग हमने स्टार्ट किया कि कैसे क्वीन एलिजाबेथ, कैसे पोर्तुगीज आए, उनसे यूरोपियन कंट्रीज को पता चला, यूरोपियन कंट्रीज नो अबाउट द इंडिया, दे ऑल इंटरेस्टेड टू ट्रेड विद इंडिया, बट सुपर पावर थी इंग्लिश डिफीटेड स्पेनिश, इंग्लिश डिफीटेड पोर्तुगीज, किंग जेम्स I, किंग चार्ल्स II, they started giving permissions and their ambassador to take the permission, Jahangir gave the permission, after that permission they started factory, they started making Madras city, और लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि उन्होंने शिमला भी स्टैब्लिश किया था। तो ऐसे ही इन्होंने कई सारे स्टेट, कई सारे सिटी स्टैब्लिश किए, और जो उनको दान में मिलता गया उससे तो उन्होंने स्टैब्लिश किया ही। ऑल आर इंटरेस्टेड टू बाय सिनेमन, पेपर, सैंडलवुड, सिल्क, ये सब को यही खरीदना था। दैट्स वाई प्राइजेस हाई एंड डिमांड, बट प्राइजेस हाई एंड प्रॉफिट लो, तो दे जस्ट सैंक ईच अदर शिप, दे जस्ट फाइट विद ईच अदर यूरोपियन कंट्रीज, और फिर निकल के आए इंग्लिश, बचे इंग्लिश, दैट इंग्लिश स्टार्टेड ट्रेडिंग प्रॉपरली ट्रेडिंग विद इंडिया, देन दे स्टार्ट बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर विद इंडिया, दे वॉन बैटल ऑफ प्लासी, दे वॉन बैटल ऑफ बक्सर, दे एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह दे कैप्चर्ड पंजाब ऑल्सो। आफ्टर दैट दे स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेशन, for the administration they started civil services, army, police and judicial services, and for to expand their territories they use 4 methods: subsidiary alliance, by conquest, doctrine of lapse and elite misgovernment. So this is the conclusion, or please comment down that what is the your view about the Britishers का आपको लेकर क्या view है, and thank you very much for watching this video. I hope this video is very helpful for you.